I'm excited to come here tonight to share the word of God with you. और मैं बहुत ही पुरजोश हूँ आज आप सबके साथ कलाम को शेयर करने में। My name is Prophet Funsho Daniel from UK. और मेरा नाम दानियल है और मैं यूके का रहने वाला हूँ। I am the lead pastor for GV Prophetic Voice. और मैं खुदाम का शुक्र अदा करता हूँ कि खुदाम के कलाम को बयान करता हूँ। Tabernacle Ministry UK. और आज आप सबके साथ भी बयान करने को हूँ। So tonight we're going to go into the word of the Lord. और आज रात हम कलाम में से सीखेंगे। I'm super excited to share a message with you tonight. और आज जो पैगाम मैं आप सबके साथ बांटने को हूँ उसके लिए मैं बहुत ही पुरजोश हूँ, एक्साइटेड हूँ। And the message title is Turning Oppression into Opportunity. और ये मेरे खुदावन का शुक्र अदा करता हूँ कि ये मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं आज आप सबके साथ कलाम को बयान कर सकूं। I know majority of you are frustrated. और मैं जानता हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो खुदान के कलाम को सुनते हैं Many of you that sit there tonight, और खुदान के कलाम को सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं। many of you have been disappointed one way or the other. सही। और उस कलाम पर फिर अमल करते हैं ताकि खुदावंद उनकी जिंदगियों में बरकत दे। But every disappointment, यस ब्रदर। every disappointment, यस। and every frustration और जब हम खुदान के कलाम को सुनते हैं तो हमारी जिंदगी में से हर तरह का डर, हर तरह का खौफ is to draw you closer to God. खुदान के कलाम के वसीला से क्या हो जाता है? You may not, दूर हो। आमीन। amen. You may not understand the frustration you are going through right now as a child of God. और अगर आप खुदा के बेटे और बेटियां हैं तो आपके अंदर कोई खौफ या कोई डर नहीं होना चाहिए। Even though the oppression that you are going through right now is to draw you closer to God. क्योंकि अगर आप खुदान के नजदीक हैं तो आपकी जिंदगी उसकी बरकतों से, उसकी रहमतों से भरपूर होनी चाहिए। आमीन। Accepted Christ as the Lord and personal Savior doesn't say things is going to be good every time. आमीन। और खुदावन के खादम बयान कर रहे हैं कि खुदावन हर वक्त क्या है? अच्छा है। वो एक अच्छा उस्ताद है, अच्छा टीचर है, अच्छा चरवाहा है। आमीन। So let's open our Bible to the book of Exodus, chapter 3, and we're going to be reading from verse 9 to 10. The book of Exodus, chapter 3, we're going to be reading from verse 9 to 10. I want someone to read it for us. Please repeat the reference. The book of Exodus, chapter 3, verse 9 to 10. Just 1 minute, my dear brother. That's fine. That's fine. So let me just read in the English version, then you can read in the Indus version in Pakistan. And the word of God said, and now the cry of the Israelite has reached to me, and I have seen the way the Egyptians are oppressing them. And in verse 10, so now go, I am sending you to Pharaoh to bring and to let my people out of Israel. Hallelujah. Amen. Now, can you just read in your local language so they can understand what we are looking at, the context of what we are looking at? Yes, I will read it in Urdu. Yeah. Okay, go ahead, please. Chapter 3. Exodus chapter 3, verse 9 to 10. Okay, I will read it. खरूज की किताब उसका 3 बाब और उसकी 9 और 10 आयत को हम खुदाम के पाकलाम में से देखेंगे। देख, बनी इस्राइल की फरियाद मुझ तक पहुंची है
और मैंने वो जुल्म भी जो मिस्री उन पर करते थे देखा है। सो अब आ, मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ कि तू मेरी कौम बनी इसराइल को मिस्र से निकाल लाए। आमीन। खुदा Amen. के उनके पढ़े और सुने जाने पर खुदा की खास बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। So now, if you remember the topic we are looking about turning oppression into opportunity. और ये हम देखते हैं कि ये बात किससे खुदा कर रहा है? मूसा से, क्योंकि मूसा ने बनी इसराइल को मिस्र की गुलामी से निकाला था, आजाद किया था। So now, what do we mean by what is oppression? और आप सबको इस हवाले से क्या पता चलता है इस स्टोरी का The meaning of कि the बनी mean- इसराइल को क्या किया था? आजाद करवाया था। so the meaning of oppression is the act of being oppressed or the state of being oppressed. और हम देखते हैं कि बड़ी मुश्किलों के साथ मूसा जो है वो खुदावंद की इस दावत को, खुदावंद के इस कलाम को कबूल करता है अपनी जिंदगी में, क्योंकि मूसा जो है वो कहता है कि खुदावंद मैं इस लायक नहीं हूँ, मैं मेरे से तो बोला ही नहीं जाता, मैं आगे जाके बनी इसराइल को क्या कहूंगा। लेकिन खुदावंद ने अपना दाहिना हाथ उस पर बढ़ाया और उसे बरकत दिया। आमीन। And we can be oppressed spiritually or we can be oppressed emotionally. और इसी तरह हम खुदा के नाम को रूहानी तौर पर भी इज्जत और जलाल देते हैं और जिस्मानी तौर पर भी। आमीन। And we can be oppressed mentally. और ज़हनी तौर पर भी हम खुदा के नाम को क्या देते हैं? And oppression can lead to depression. और इसी तरह जब हम डिप्रेशन में होते हैं, डिप्रेशन का शिकार होते हैं, तब भी हम खुदा के नाम को क्या देते हैं? इज्जत और जलाल देते हैं। Being oppressed can lead to weariness. और यहाँ पर हम देखते हैं कि मूसा की जिंदगी में से भी खुदा ने इसी तरह अपने नाम को इज्जत और जलाल दिया। Now, we've looked at oppression. Now, let's look at the opportunity. Remember, I said what we are looking about turning oppression into opportunity. Now, what is an opportunity? और Now, जब मूसा को खुदा ने ये अपॉर्चुनिटी दी, जब खुदा ने मूसा को इस बात के लिए चुना, तो फिर मूसा ने भी खुदा के नाम में बढ़ते हुए बनी इस्राएल को क्या किया था? an क्या opportunity किया था? आमीन। an opportunity is to see how you can turn every oppression, how you can turn it around. An opportunity is to see how you can turn situation around. और जब हमें ये खुदा की तरफ से अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, तो तब हम हर एक काम करने की क्या रखते हैं? कुदरत रखते हैं, क्योंकि जब खुदावंद हमारे साथ है तो हमें किसी भी खौफ का, किसी भी डर का सामना नहीं होता। हमें So Christ is here tonight to turn your situation around. Hallelujah. और आज आप सबको खुदावंद के आगे रोने की जरूरत है। आप जिस भी सिचुएशन में हैं, जिन भी हालात में हैं, आप खुदावंद के आगे रोए। Christ is here tonight to turn every of your oppression to turn into every opportunity for God. आमीन। क्योंकि जब हम खुदावंद के आगे रोते हैं, जब हम उसके आगे आंसू बहाते हैं, तो उसका कलाम बहुत ही खूबसूरती से बयान करता है कि जो आंसुओं के साथ बोता है वो खुशी से काटेगा। आमीन। तो जब हम आंसुओं से बोते हैं तो हमारा खुदा हमें वो सारी बरकत से नवाजता है। आमीन। I pray for हालेलुया। someone. I pray for someone watching me tonight that wherever you are in Pakistan tonight, that the Lord will turn every of your oppression, it will turn it around tonight in the name of Jesus. आमीन। और आज मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा कि आप जिस भी हालात में हैं, जिन भी सिचुएशंस में हैं, खुदावंद आपके साथ हो और खुदावंद आपको आगे बढ़ने की हिम्मत और ताकत दे, ताकि आपकी जिंदगी में So, खुदावंद का नाम इज्जत और जलाल पाया। आमीन। so before we go into our prayer section tonight, we're going to be looking at 4 spiritual insight
how you can turn every of your oppression, how you can turn it around for opportunity for God. और जब हम देखते हैं मूसा को खुदा ने इस बात के लिए चुना, जब मूसा को ये अपॉर्चुनिटी दे दी गई, तब खुदावन ने मूसा के साथ साथ अपना हाथ रखा। खुदावन ने मूसा को जैसे जैसे हुक्म दिया, मूसा ने वैसे वैसे ही किया, खुदावन की मर्जी के मुताबिक। Tonight, Christ is here tonight, and every oppression situation that you are going through, it will turn it around for God tonight in the name of Jesus. So, और आज अगर आप सबके सामने भी मूसा के जैसी सिचुएशन भी खुदावन की हजूरी में आए, उसकी हजूरी में झुके। now, how to turn oppressive situation, how to turn it around for God. Number one, realize that God is with you at all time. You must realize that God is with you at all time. That's number one. यस यस। और हमें ये चाहिए कि जब हम उसके हुजूर में झुकते हैं तो पूरे दिल के साथ उसकी हुजूरी में झुक के उनका कलाम बहुत ही खूबसूरती से बयान करता है कि तो अपने पूरे दिल, अपनी दास से मोहब्बत रखा। मैं You must realize that in every oppressive situation you are going through, God is with you at all time. और जब आप किसी भी हालात में होंगे, किसी भी दुख में होंगे, परेशानी में होंगे, तो खुदावन का दाहिना हाथ आपको हर एक उस दुख से, मुसीबत से क्या करेगा? महफूज करेगा। आमीन। The Bible says in the book of Romans chapter 8 verse 14, it said, and as many that has been led by the Spirit of God, they are the Son of God. You must see that